राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजना तथा कालेबुङ जिल्ला प्रशासनको तदारुकतामा कालेबुङ टाउन हलमा हिजोबाट सुरु भएको एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङमाथिको 2 दिवसीय सचेतना कार्यक्रम आज समाप्त भयो। पहिलो दिन हिजो विशेष महिलाहरूको निम्ति केन्द्र सरकारद्वारा परिचालित कल्याणकारी योजनाहरूबारे सचेतना गराइएको थियो भने आज दोस्रो दिन मूल विषय मानव तस्करी रोकथाम विषयमाथि सघन वार्ता अनि चर्चा परिचर्चा गरियो। कार्यक्रममा आज पनि दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने राष्ट्रिय महिला आयोगकी चेयरपर्सन रेखा शर्माले कार्यक्रमको सभा अध्यक्षता गरेकी थिइन्। यसका साथै पश्चिम बङ्गालकी पूर्व राज्यसभा सांसद तथा बलिउड अभिनेत्री रूपा गाङ्गुली विशेष रूपले उपस्थित रहेकी थिइन् तथा कालेबुङकी विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती ज्योति कार्की पनि कार्यक्रममा विशेष रूपले उपस्थित रहेका थिइन्। यसबाहेक कालेबुङका अन्य विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताहरू शोभा छेत्री, सभासद पाल्देन तामाङ, निरेश मुखिया लगायत विभिन्न सङ्घ संगठन, निकाय अनि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नमस्कार हजुर सबैलाई अन्त सबै कालिम्पोङवासी ठिकै हुनुहुन्छ? Yes? A very good morning and a very warm welcome to everybody. Before we start the program, I'd request our dignitaries, Honorable Chairperson NCW Madam Rekha Sharma, Honorable MP Shri Raju Bista Sir, and members of the West Bengal State Government Commission to kindly come up on the dais, please. We are deeply grateful to our Honorable Chairperson Madam Rekha Sharma for her unstinted support and guidance in organizing this program, and also to the district administration of Kalimpong for collaborating with us with equal zeal, concern and commitment to this very important cause on which the seminar we are doing today. So human trafficking is one of the gravest deprivations of human rights and dignity, and which each day this organized crime network is growing in intensity, dimension, and spread. Trafficking trends, patterns, and strategies evolve over time and adapt to new demands, challenges, and law enforcement responses. Namaskar. My name is Vivek and I am from Darjeeling. So our story is like, actually we applied for a Thailand visa as an employee, but actually what happened was the agent cheated us and sent us to Myanmar. So basically we were like human trafficked, and yeah, you please continue. And actually our job was supposed to be in Thailand, but on the way they made us cross the river, and we later realized that we reached Myanmar. एंड देन उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन पे गए हेल्प मांगने के लिए। जब हमने रियलाइज़ किया कि हम लोग म्यांमार में हैं, तब हम लोग पुलिस स्टेशन पे गए कि सर प्लीज़ हेल्प अस, एंड देन उन्होंने फिर बोला कि दे हैंडेड अस ओवर टू द इमिग्रेशन टीम, एंड उसके बाद वी स्टेड इन पुलिस स्टेशन फॉर 4 months. एंड देन इंडियन एम्बेसी ने हेल्प किया, एंड हम लोग इसी नवंबर 19 को ही इंडिया रीच किया है। What about the trafficking cases in the hills of Darjeeling? There's no case there. Majors till 17, till date, 0 cases. I might be wrong, 1 or 2 could be there, but this is the data which I got it from a reliable sources. Now let's go to district number 2. No case. I was not given data. But I have the same thing, because there also there's been no trafficking cases registered. I mean to say trafficking cases on 370, 371 IPC. But yes, POXO cases, trafficking, because what is happening now, because of the POXO,
We all are doing so much good work, and POXO cases have been reported. We are all focusing on POXO cases. But what about trafficking? We always learn from experiences. So ये बहुत मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें पॉइंट आउट करूँगी, क्योंकि रेखा जी ने और राजू ने और जेंटलमैन यू वर मिस्टर छेत्री, देखिए जो ट्रैफिक्ड होते हैं उनको बेगिंग में लगाए जाते हैं, हाथ पैर काट के, और ख़ास करके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में लगाए जाते हैं, और बॉन्डेज लेबर, कम पैसे देकर उनको काम कराना और गायब कर देना कुछ दिन बाद, पैसे देना ही नहीं, और जैसे तैसे करके उनके साथ बेइज्जती करना, ये तरीका होता है। तरीका के बारे में पता चला, हम इसमें से एक चीज़ दो चीज़ पूछना चाहते हैं। यहाँ जितने सारे बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी बच्ची मुझे स्कूल स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, आप सबका आधार हो चुका? सबका। मैं पेरेंट्स को कहूँगी यहाँ जो भी है, और जितना छोटा बेबी क्यों ना हो, जल्द से जल्द आधार कर दीजिए, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। ये मोस्टली बच्चों को इसी तरह से लिए जाते हैं, उन बच्चों के साथ होता है, गरीब है, कुछ शौक़ है, कुछ एस्पिरेशन है, अपने आप वो कर नहीं पा रहे हैं। और ऐसे भी घटना बहुत देखे जाते हैं कि किसी घर में 4, 5, 6 बच्चे हैं, तो एक बच्ची कहीं और एक्सप्लोर करते हैं और पिता माता भी चलो कुछ महीने बाद छोड़ देते हैं इस विषय को, आगे बाकी बच्चों के साथ ज़िंदगी जीने लगते हैं। और वो बच्चियाँ और वो बच्चे लड़के भी अपने घर वापस नहीं आ सकते। तो ये स्टिग्मा की वजह से जो होता है, इसके लिए ही ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग विक्टिम्स के साथ क्या होता है? अगर आप स्टडी करेंगे ट्रैफिकिंग विक्टिम के साथ, तो 2 कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट, कि विक्टिम को पता ही नहीं होता कि मैं विक्टिमाइज हो रहा हूं या हो रही हूं। दे डोंट रियलाइज दैट दे आर विक्टिम्स, एंड इन पर्टिकुलरली इन केसेस ऑफ बॉन्डेड लेबर। अगर किसी बॉन्डेड लेबर से अगर आप बात करेंगे, जैसे कि आप फार्म हाउसेज और दुनिया जगह पे देखते हैं, उनसे पूछेंगे कि अरे ये तुम क्यों कर रहे हो, तुमको तो बॉन्डेड लेबर हो, तो व्हाट आंसर दे गिव? वो तो कहते हैं कि हमारे पुश्तों से चले आ रहा है, मेरे दादाजी भी इनके घर पे काम करते थे, मेरे पिताजी और माताजी भी काम करते थे, तो आज हम भी काम कर रहे हैं। That is the mindset which has got into them. The concept of freedom, the concept of being free is not there. So the victim does not realize that they are victims of trafficking. Next, please. These factors that we are talking about are called pull and push factors. जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के डेफिनेशन पे हम बात नहीं कर रहे, डायमेंशंस की बात नहीं कर रहे, डायमेंशन सर करेंगे। जो जगह 2-3 चीज, जैसे कि बताया जा रहा था, पॉइंट ऑफ ओरिजिन या प्लेस ऑफ ओरिजिन, ट्रैफिकिंग को अगर सिंपल डिफाइन करना हो, डेफिनेशन के हिसाब से तोड़ना हो, तो 3 चीज में तोड़ा जाता है। एक, प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहां से कि विक्टिम को रिक्रूट किया जाता है, दैट इज द टर्म विच इज यूज्ड, रिक्रूट करना, वेयर द विक्टिम इज आइडेंटिफाइड, located, trafficker either directly or through somebody would come and recruit the person by alluring, by means of force or whatever. There is a full things, look, you know, what are the means to be adopted for recruitment. तो वो recruitment point of origin होता है। फिर movement होता है, transit, transport, transfer जिसको हम बोलते हैं, और destination point होता है जहां की उसका exploitation होता है। तो जो point of origin है, जो causes of vulnerability है, उसको हम बोलते हैं push factors. Push factors means those are the factors at the place of origin which is pushing the vulnerable, means the pushing the vulnerable to get out of that vulnerability. Naturally, those children are there begging. आप रास्ते में begging करते हैं ना, बच्चे भीख मांगते नहीं हैं, बच्चे भिखारी नहीं है, children are not beggars, children are made to beg. लड़की भागती नहीं है, लड़की को भगाया जाता है। There's a world of difference. Here again, why poor law enforcement? Law enforcement क्यों? Number 1, हम कहते हैं कि मैं बिजी हूँ। अरे हम बिजी किस काम के लिए भाई? आपको यूनिफॉर्म पहना के रखा हो इसी यही काम करने के लिए, है ना भाई साहब?
एग्री विद मी? यूनिफॉर्म दे रखा है इसी काम के लिए। 35 ईयर्स मैंने भी काम किया यूनिफॉर्म में। आई नेवर फाउंड टाइम नहीं है, टाइम है उसी के लिए। यू आर पेड फॉर दैट। You are adorned uniform only to do that. That is your job. Colonel Sahab, agree with that. See, uniform gives you a responsibility, not authority. Uniform gives you a responsibility. You come to public service, do that. If you don't register crime and investigate, there is no solution. So poor law enforcement is because of lack of interest, lack of opportunity. कभी कहते हैं कि क्राइम रजिस्टर नहीं होता है, कि क्राइम मेरे पास रिपोर्ट नहीं होता है। हमको सुनने में आया था क्राइम मेरे पास आता ही नहीं है। मेरे जितने भाई जाना बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, इस कॉलेज के बच्चे, बेटे आपकी जानकारी में क्राइम आता है ना, आप SHO को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दो। आजकल इंटरनेट आ गया ना, आप SHO को इन्फॉर्मेशन क्राइम में आप इस इंटरनेट से पास ऑन करो। कॉपी SP को दे दो, कॉपी IG को दो, कॉपी DG को दे दो, कॉपी स्टेट कमीशन को दो, कॉपी नेशनल कमीशन को भी दे दो। हाइप करो, पब्लिसिटी करो, तो क्राइम होगा तभी रजिस्टर होगा। वी हैव टू गेट द मशीनरी इनटू एक्शन। हम लोग साथ रहेंगे तो काम हो सकता है। वी हैव टू गेट द मशीनरी इनटू एक्शन। मशीनरी में पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत अच्छे हैं। आई एम टेलिंग यू, आई टच द हार्ट ऑफ मेनी ऑफ देम आर हियर, वेरी सिंसियर, कॉम्पिटेंट, केपेबल, गुड पीपल, इवन इंक्लूडिंग बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। अच्छे लोग हैं, उनको काम करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। कल का विषय और आज का विषय काफ़ी मिला जुला है। अगर कल के विषय में हम सामर्थ्य और सक्षम बन सकते हैं, मुझे लगता है उसके बाद कभी ट्रैफिकिंग जैसे विषय में हमको शायद चर्चा करने की भी आवश्यकता ना पड़े। तो काफ़ी सिनर्जी है इन दोनों विषयों में। और मैं एक बार फिर महिला आयोग को, सभी उनकी टोली को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने कालिम्पोंग, दार्जिलिंग को चुना और इन सब विषयों की सबसे ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता हम सबको थी। भारत सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वो चाहती है कि देश तरक्की करे, और देश तभी तरक्की करता है जब उस देश में रहने वाले जनता आत्मनिर्भर बनते हैं, सामर्थ्य और सक्षम बनते हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार की ये चेष्टा पहल रहती है कि वो योजनाएं धरातल पे आम जनता तक पहुँचे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम एक ढर्रे से चले आ रहे हैं और उस ढर्रे के कारण बीच में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है छूट जाती है। हमारे देश के कभी एक प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं गांव में जब 100 रुपये भेजता हूँ, 15 पैसा ही गांव तक पहुँचता है, 85 पैसा बीच में गायब हो जाता है। उस तंत्र से आज भी हम अछूते नहीं हैं। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी के उनके विज़न के कारण, उनकी सोच और उनकी दृष्टि और उनके पास जो अनुभव है, उसके कारण आज हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि देश बदल रहा है और देश में चीज़ें और काम करने के तरीके, उसमें परिवर्तन आ रहा है। लेकिन कोई चीज़ बिगड़ने में जितना समय लगता है, ठीक होने में उससे अधिक समय लगता है। लेकिन सही दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये सब चीज़ें ठीक होंगी, और जिन विषयों के ऊपर में आज हमको चर्चा करना पड़ता है, शायद इन विषयों की चर्चा करने की आवश्यकता ना पड़े। मैं एक डॉक्टर के पास गया था, वहाँ पे एक कोटेशन था, मैं उस कोटेशन को तो भूल गया, लेकिन उसकी भावनाओं को मैं समझ करके आया। बड़े दुख के साथ लिखा हुआ था कि मुझे बहुत कष्ट होता है कि मैं इस व्यवसाय में हूँ जहाँ लोग कष्ट के कारण, दुख के कारण, तकलीफ़ के कारण आते हैं। मतलब उस डॉक्टर की ये भाव थी। और देखा जाए तो मरीज बीमार रहता है तभी डॉक्टर के पास आता है। हम चाहते हैं हमारा समाज ऐसा हो कि डॉक्टर की आवश्यकता ही ना पड़े और पुलिस की आवश्यकता ही ना पड़े। इस तरह की जो है मतलब समाज और देश हम सब अपेक्षा रखते हैं, और उस दिशा में मुझे लगता है काफ़ी अच्छी पहल चल रही है। जहाँ तक ट्रैफिकिंग का विषय है, मैं जैसे पहले भी बताया, मेरे से बहुत ज्ञानी और एक्सपर्ट लोग मेरे सामने मौजूद हैं। मुझे लगता है इन विषय में मैं बहुत लंबी चर्चा करूं, शायद वो नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन हमारे क्षेत्र में इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। हम सब जानते हैं दार्जिलिंग देश में एकमात्र ऐसा ज़िला है जहां 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ है। एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ नेपाल, भूटान की सीमा हमारे साथ लगती है, और चाइना एयर डिस्टेंस में करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे है। एक तरफ बिहार लगता है, एक तरफ सिक्किम लगता है, एक तरफ आसाम लगता है।
और ये 21-22 किलोमीटर का चिकन नेक क्षेत्र भी यहीं रहता है और पूरा साउथ ईस्ट एशिया के देश जो है यहीं से कनेक्टिविटी हो करके जाती है। और आज हम देखते हैं कि ये जो चिकन नेक क्षेत्र है, जितने भी गलत काम होते हैं इसी सड़क के थ्रू होते हैं। यहाँ की आर्म्स की स्मगलिंग होती है, ट्रैफिकिंग होता है, इलीगल सेटलमेंट यहाँ पे लोग बाहर से आकर के बस रहे हैं, ड्रग की स्मगलिंग यहाँ से होती है और गाय की तस्करी यहीं से होती है, मानव तस्करी यहीं से होती है। यानी जो भी कूड़ा है इसी चिकन नेक क्षेत्र को ध्यान में रख कर के होता है और इसकी आवश्यकता हमें सबसे ज़्यादा है। और मैं इसके कारण पे जाता हूँ तो बाकी एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन मूल मुझे 2-3 चीज़ें ध्यान में आती है। हमारे क्षेत्र में जो आर्थिक अवस्था है इसका सबसे बड़ा कारण है। मुझे याद है 2003 से लेकर के 2014 तक की एक रिपोर्ट पेश हुई थी। हमारे टी बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन भी हमारे बीच में उपस्थित है, उनको भी इन सब विषयों के बारे में ज़रूर जानकारी होगी। 2003-2014 के बीच में मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, 3000 लोगों की मृत्यु हुई भूखमरी के कारण, गरीबी के कारण। और आए दिन जो है करीब 400 चाय बागान है, 1 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी, राजवंशी, गोरखा समाज के लोग और विशेष करके उसमें भी 70% से ज़्यादा महिलाएं काम करती है। जब चाय बागान में जो है पूरे पश्चिम बंगाल में मिनिमम वेज एक्ट अगर देखें तो 350 रुपये अनिवार्य है, लेकिन टी बोर्ड की पता नहीं ऐसी क्या परंपरा है, प्लांटेशन लेबर एक्ट ऐसा बना हुआ है 1952 में, जिसके कारण आज भी जो है 200 रुपये ही टी लेबर को मिलता है। 8 घंटे आप काम करते हो पहाड़ में, बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन में, बारिश में, धूप में, लेकिन उसके बावजूद भी मात्र 205 या 200 रुपये ही मिलता है। उसके कारण, गरीबी के कारण पुरुष भी उसके शिकार होते हैं, फिर महिलाएं होते हैं, फिर बच्चे भी उसके शिकार हो रहे हैं। और हमारे लोग बेरोजगारी के कारण यहाँ से दूसरे बड़े शहरों में जाने को मजबूर है, वहाँ पे जाके नौकरी करने को मजबूर है, उनके साथ भी शोषण होता है। और इसके कारण सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा का पूरा समाज जो है वो बर्बाद हो रहा है। और मुझे लगता है इसके बारे में जागरूकता के लिए हम जितना भी प्रयास करें, मुझे लगता है वो कम होगा। और इससे बड़ा मतलब इसको मैं इतना पवित्र काम मानता हूँ कि इससे बड़ा पवित्र काम, ऐश्वर्य काम और कोई नहीं हो सकता अगर हम सब मिलकर के प्रयास करें। क्योंकि चीज़ों की जानकारी, उसकी समस्या की जानकारी अगर हमारे पास हो तो उसका समाधान भी संभव है। लेकिन अगर चीज़ों की समझ नहीं है, समस्याओं की समझ हमारे में नहीं है, तो उसका समाधान ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं चाहता हूँ हमारा ये पूरा क्षेत्र आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी सक्षम बने। अगर इन 2 विषयों को, इनकी मूल्य को हम समझेंगे, जानेंगे, तो मुझे लगता है कि ये विषय जो है हमारे लिए बहुत आसान होगा। मैं एक छोटी सी नेपाली में एक कविता, मैं इसके थोड़े अध्ययन कर रहा था। एक असारी कल के एक कविता है जो हमारी एक दीदी है डुवर्स में, प्रतिभा लामा जी, मेरे ख्याल से दीदी मुझे करेक्ट करेंगे, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी। ये 4 पंक्तियाँ जिसको समझ में आए उसकी आंखों में आंसू आ सकता है। और ये ट्रैफिकिंग का मूल कारण, फिर मैं घूम फिर के वहीं आ रहा हूँ, जो गरीबी है, जो इकोनॉमिकली जो मतलब आज जो हमारे ऊपर जो समस्या है, उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही है। वो लिखती क्या है? माई तेई तो थियो अनिकाल, माई तेई तो थियो अनिकाल, नजिक का यानी पास का, दुईटा कमान बंद भएको साल, सीता, मुन्नी, रमणी, दीपा, लाली दीदी हरू हराएको साल। एक महिला ने लिखा है। और उस भावनाओं को अगर इस बोली को हम समझ पाए तो इस 4 पंक्तियों में सब कुछ छुपा हुआ है। और मुझे बड़ा कष्ट होता है, मुझे दुख होता है, इतना बड़ा विशाल देश, 3-3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, लेकिन उसी देश में एक क्षेत्र ऐसा है जो आज़ादी से पहले सबसे सामर्थ्य और सक्षम था, आज सबसे पिछड़ा है।
और ये गलत नीतियों के कारण है, अनदेखियों के कारण है। मुझे लगता है हमारे समाज को इसके ऊपर में जागरूकता होने की आवश्यकता है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, मैं एक अच्छा नेता तो नहीं हूँ और मैं वो प्रयास भी नहीं करता नेता होने का, और मेरा ये सपना है कि एक दिन ऐसा समय आएगा ये पूरा का पूरा क्षेत्र दार्जिलिंग, तराई और डूवर्स भारत में दूसरा ऐसा स्थान आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं कहा करता हूँ, दुनिया में ढूंढो तो एक ही शक्ल के दो लोग हो सकते हैं, लेकिन दूसरा दार्जिलिंग दुनिया में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और ये मेरा सपना है और मैं उस काम को लेकर के अभी लगा हूँ। मैं चाहता हूँ हमारी महिलाएं, हमारे युवा साथी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से और विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से हम सबको सक्षम होना पड़ेगा। हम सबको एक कदम आगे बढ़ना होगा। राजनीति के कारण हमारी मानसिकता में ऐसा आघात पहुंचा है, कई बार हम सोचते हैं बगैर कुछ करे हम महान बनेंगे, बगैर प्रयास के तो कुछ भी नहीं होता। अगर हम थोड़ी सी चेष्टा करेंगे, थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो मुझे लगता है ये दिन बदल सकते हैं। और अंत में चाय बागान की दृष्टि से, सिंखोना की दृष्टि से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, भारत सरकार ने पार्लियामेंट में 2020 में एक लेबर कोड बिल पास हुआ है, जिसमें कोड ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी ऐसे करके 4 कोड हैं। करीब 40-50 अलग अलग कानून थे, उन सबको मर्ज करके 4 कोड में पूरा लेबर लॉज को उसमें समाया हुआ है और उसके अभी रूल्स वगैरह बन रहे हैं। जिस दिन ये लागू होगा उस दिन चाय बागान के श्रमिकों को कम से कम 350 रुपये मिनिमम वेज मिलेगा। आज 350 रुपये मिनिमम वेज काइंड 50% बोल के आधा ही मिलता है, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद 85% कम से कम कैश में आपको मिनिमम वेज देना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, अभी तक प्लांटेशन लेबर एक्ट 1952 के कारण चाय बागान में ESI के अस्पताल नहीं खुल पाते थे। अब आने वाले समय में हर गार्डन के लिए अस्पताल सरकार की तरफ से बनेगा। PMGSY रोड जो आज गार्डन के अंतर्गत आता है, वहाँ सरकार सड़क नहीं बना सकती, वहाँ पे सरकार सड़क बनाएगी। 518 करोड़ का सिर्फ कालिम्पोंग के लिए पानी के लिए जो है बजट सेंक्शन हुआ है। दार्जिलिंग के लिए 1060 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ है। कालिम्पोंग म्यूनसिपलिटी के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। इन सब के कारण बहुत तेज़ी से तरक्की होगी और इस लेबर कोड के कारण जो वास्तव में पीड़ित है इस ट्रैफिकिंग के उसमें, उन सबको आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मतलब ये प्रयास है, ये काम हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। मुझे लगता है मैं इतना कह सकता हूँ 10 साल के बाद का कालिम्पोंग दार्जिलिंग कुछ अलग ही होगा। अंत में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के मैं सभी को बधाई और धन्यवाद करना चाहूँगा और विशेष करके महिला आयोग की अध्यक्षा और उनकी टीम को मैं ज़रूर आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और ये मेरा प्रण है, मैंने कल मैम से भी कहा है कि आप मुझे 4 लोग दीजिए, एक कालिम्पोंग, कर्सियंग, दार्जिलिंग और मिरिक के लिए मेरा आपसे वादा है कम से कम 5000 महिला और युवा मैं उनको तैयार करूंगा। वो अपने आप में सक्षम बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और उन 5000 लोगों से इस क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा। भारत माता की। Namaskar. Our young and dynamic member parliament, Raju Bista ji, and as he said, the off the stage portion is heavier than on the stage. So our Mr. Nair, who is a very, very senior police officer, Dr. Virendra, and I'm the one who is pronouncing the name right. He is not Vijendra, he is Dr. Virendra. Rupa Ganguly ji, today she will be also talking about the trafficking and how we can combat it. And one person I would like to thank is my husband, who's come for the first time in my program. In last 7.5 years, this is the first time I think he's listening to me from the stage. Otherwise, घर पे तो रोज सुनते रहे. Ladies and gentlemen, officers of the T-Board, Railway Board, students, very good morning. And today we are talking on a very important issue. हम लोग आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं.
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने पिछले 8 महीने पहले ही एक नया सेल की घोषणा की, जिसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल जिसको हमने कहा, और उसके अंतर्गत हमने आज तक मेरे ख्याल 6 से 7 कार्यक्रम ऑलरेडी कर दिए हैं अलग अलग राज्यों में और दिल्ली में भी, जहां हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि क्या है ट्रैफिकिंग। बहुत लोग समझ भी नहीं पाते कि ट्रैफिकिंग है क्या, और वो कैसे हम उससे लड़ सकते हैं। जब तक हम सब लोग मिलके, चाहे वो टी बोर्ड के लोग हों या रेलवे बोर्ड के लोग हों, स्टूडेंट्स हों, NGOs हों, हम सब लोग मिलकर नहीं लड़ेंगे तो ये एक इतनी गंभीर विषय है कि हम नहीं लड़ पाएंगे, हम उससे पार नहीं पा पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सब लोग जानें ये है क्या, और इसको जानने के लिए आज हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं वो बहुत काबिल लोग हैं, वो आपको अच्छे से समझाएंगे। मैं थोड़े कुछ विषयों पर बात करूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2016 में एक बार जितने क्लोज टी गार्डन्स हैं वहाँ मैंने आकर स्टडी किया था महिलाओं पर क्या बीत रही है, और वो जो टी गार्डन्स हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, महिलाओं की समस्याएं क्या हैं। और मैंने पाया कि ट्रैफिकिंग विषय जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिकिंग महिलाओं का उन क्लोज टी गार्डन्स में महिलाएं बहुत सफ़र कर रही हैं, महिलाएं ही नहीं बच्चे भी बहुत सफ़र कर रहे हैं। ये शायद जो हम जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है कि नीचे लोग कैसे सफ़र करते हैं, और एक मोबाइल या एक मेकअप किट के लिए भी लोग उनको ल्योर कर लेते हैं। एक लड़की जिसके घर पर खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है और उसको मोबाइल के सपने दिखाए जाएं, वो बहुत इजीली विश्वास कर लेती है ट्रैफिकर्स पर कि मुझे बहुत अच्छी, वो जो बोलते हैं ग्रीनर पेस्चर्स दिखाना, वो ग्रीनर पेस्चर की आप अगर दिल्ली में जाएंगे तो आपको हम किस प्रकार की ज़िंदगी देंगे, और उनके साथ होता क्या है। बहुत सारे ट्रैफिकर्स इस एरिया में काम कर रहे हैं, और ये जितनी प्लेसमेंट एजेंसीज दिल्ली या उसके आसपास खुली हैं, वो सभी प्लेसमेंट एजेंसीज इल्लीगल हैं, कोई रजिस्टर्ड नहीं हुई, और वो किस प्रकार उन महिलाओं का मिसयूज़ कर रहे हैं। और ट्रैफिकिंग में सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, उसमें और बहुत तरीके के एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं। घर में आप मजदूरी कराते हैं बिना उनको सैलरी दिए, और या बहुत कम सैलरी दिए, जो प्रॉमिस करते हैं वो नहीं। घर वालों को लगता है कुछ 2-3 महीने अच्छी सैलरी भेजती है, कुछ अच्छा पैसा भेजती है, और उसके बाद पैसा आना बंद हो जाता है। उस लड़की का पता भी नहीं चलता घर वालों को कि कहाँ है। कुछ दिनों तक उनका पत्राचार होता है, लेटर्स आते जाते हैं या फ़ोन भी आते जाते हैं, और फिर फ़ोन छीन लिए जाते हैं। उनके ऑर्गन ट्रेडिंग के लिए उनको यूज़ किया जाता है, सरोगेसी के लिए यूज़ किया जाता है। ये मैं सिर्फ लड़कियों की बात कर रही हूँ, बच्चों को तो भीख मांगने के लिए बहुत तरीके से उनको मिसयूज़ किया जाता है। और उसके बाद आज अगर आप देखें मिसिंग चिल्ड्रन की, अगर आप डाटा देखें मिसिंग चिल्ड्रन का, तो वो कहाँ जाते हैं बच्चे। कुछ दिन तक तो पुलिस ढूंढती है, कुछ साल तक ढूंढती है, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं आप लोगों ने कभी देखा। और सिक्किम और इस एरिया में बहुत सारे मिसिंग रिपोर्ट्स होते हैं जो नहीं पता, सिक्किम या हिली एरिया ऑफ दार्जिलिंग और यहाँ कालिम्पोंग, वो कहाँ जाते हैं बच्चे। वो ट्रैफिक होते हैं, उनके ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, या उनके साथ उन मजदूरी कराई जाती है जहाँ उनको पैसा नहीं दिया जाता, और उनका कुछ सालों बाद माँ बाप भी ढूंढना बंद कर देते हैं और उनका कुछ पता नहीं चलता। ये सारे विषय आज हम बात करेंगे, कैसे हम उनसे लड़ाई कर सकते हैं, कैसे कॉम्बैट किया जा सकता है। लड़कियों को अपनी, स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन हु आर देयर, I think you can be the brand ambassador of anti-human trafficking, because you people can save others also. Start making your own clubs where you can talk about this, how these young girls can be lured by the traffickers and how we can save them. So today when you go back, please go to your schools, respective schools and your societies. Take this challenge on your shoulders, talk about it. आप लोग बात करें आपस में, और जब तक हम किसी समस्या का, जैसे राजू जी ने कहा, जब तक हम किसी समस्या की बात नहीं करते खुलकर, हम उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते। और समाधान सब हमारे हाथों में है। ट्रैफिकर्स बहुत स्मार्ट हो गए, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है।
आपके मोबाइल पर ही आपको कैसे ढूंढते हैं, आपके इंस्टाग्राम पोस्ट से, आपके फेसबुक पोस्ट से। अगर आप अपने फेसबुक पे ये लिखेंगे कि आप खुश नहीं हैं अपनी ज़िंदगी से, एंड यू आर शेयरिंग योर प्राइवेट पिक्चर्स, यू आर शेयरिंग योर प्राइवेट एड्रेसेस एंड ऑल थिंग, हाउ दे विल target you. It is very easy to target. So kindly take precautions on your social media also, especially young girls who are sitting here. आप अपने सोशल मीडिया को ब्लॉक करके रखें, सिर्फ आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं, ऐसा रखें उसमें, और अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या पिक्चर्स उसमें ना डालें। अगर आप नहीं डालते तो आप वल्नरेबल नहीं होते, और ट्रैफिकर्स को भी ईजी नहीं होता टारगेट करना। बहुत सारे ऐसे विषय हैं आज आपको बताए जाएंगे, क्योंकि मैं उतना समय नहीं लूँगी। हमारे 3 रिसोर्स पर्सन हैं जो आपको अच्छे से समझाएंगे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हमेशा आपके साथ है। अगर आप चाहेंगे तो हम और डिस्ट्रिक्ट्स में भी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग या न्यू जलपाईगुड़ी कहीं पे भी हम ऐसे प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है, अगर आप वेस्ट बंगाल का ये एरिया देखेंगे, नॉर्थ बंगाल, ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग इस एरिया से होती है। अगर भारत में ट्रैफिकिंग होती है तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। 27 परगना से भी होती है, लेकिन मैंने ये स्टडी किया है कि ये एरिया सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, यहाँ की लड़कियाँ बहुत वल्नरेबल है। तो हमें उनको बचाना है, और सेव करेंगे तभी एम्पावर भी कर पाएंगे। आज हम यहाँ से जब जाते हैं तो कसम खा के जाएं कि हम अपने साथ और अपने जैसे लोगों को इसका शिकार नहीं होने देंगे। धन्यवाद।